آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلاک نیوز، جہاں ہر ٹک ٹک میں سچائی ہے۔ میں ہوں بلال خان۔ آج 2 جنوری 2026 بروز جمعہ کولکتہ کے تپسیا علاقے میں موجود ہیں، جہاں پہ مدرسہ رحمانیہ رضویہ کے 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ اس پرنور محفل، پروقار محفل کا آئیے ایک جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جشن دستار حفظ رہنما فاؤنڈیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے جانب سے اس مدرسہ رحمانیہ رضویہ کو چلایا جاتا ہے۔ آئیے مزید جانکاری لیتے ہیں اور ان کے ذمہ داران اور عالم دین سے بات کرتے ہیں، علماء سے بات کرتے ہیں۔ آئیے اس پرنور اور پروقار محفل کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام معلم کائنات کانفرنس کے نام سے منایا گیا، جس میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مدرسہ رحمانیہ رضویہ، جس کے فاؤنڈر بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مشرف حسین صاحب، ان کی نگہبانی میں، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ بخوبی چل رہا ہے۔ اور اس علاقے کے تمام تر احباب ان کے دست و بازو بن کر ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ چھوٹے چھوٹے کم و بیش 10-11 بچوں کے سر پر دستار حفظ باندھی گئی ہے۔ انہوں نے قرآن شریف کو پورا مکمل اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان کے ذریعے کرایا، ان کی سرپرستی میں کرایا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہی ساتھ رہنما فاؤنڈیشن جو ہے، جس کے زیر اہتمام یہ تمام پروگرام ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 10 اور 11 بچے ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس رہنما فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک کافی بڑی زمین کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے، جس پر الحمدللہ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک عظیم ادارہ بھی منظر عام پر انشاءاللہ آئے گا، جس میں بہت سی بچیاں جو ابھی تعلیم سے دور رہتی ہیں، ان کے لیے خصوصی وہاں پر انتظام رہے گا۔ بہت سی مجبوریاں ہوتی، ماں باپ دور بھیجنا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو، لہٰذا ان کے لیے بڑا ایک شاندار ادارہ عمل میں آنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کام چل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور بھی بہت سے منصوبے ہیں۔ الحمدللہ 10 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور بچے کا نام اور نام حضرت بتائیں گے ہمارے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کافی تعداد میں یہاں کے لوگوں نے اس منظر کا ملاحظہ کیا، ان بچوں کا استقبال کیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے آپ حضرات، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے قوم کے بچوں کو سر کیا پیغام دیں؟ سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہوتی ہے۔ قوم کے ہر سماج کے ہر طبقے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ آج کے دور میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ علم جو ہے وہ دراصل روشنی کا نام ہے، جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا۔ تو اگر ہمیں ترقی کرنا ہے، خود کو اگر بیدار رکھنا ہے، اپنی قوم کو بیدار رکھنا ہے، پورے معاشرے کو بیدار رکھنا ہے، تو ہمیں علم سے ناطہ جوڑنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت جو غیر مدرسے کے جو بچے ہیں ان میں تعلیم پائی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں پائی جا رہی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تربیت میں رول ماں باپ کا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں وہ خاص اس پر توجہ دیں، اپنے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ اس طرح کا بنائیں تاکہ گھر میں اگر آپ کے اندر تعلیم ہوگی تبھی تو آپ کا بچہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ تربیت گھر سے شروع ہو جاتی ہے، پہلا سبق گھر سے ملتا ہے، اس کے بعد ہی یہاں بچہ آتا ہے۔ حضرت ایک عالم دین کا قوم مسلم میں کیا ضرورت ہے؟ عالم دین کہتے کس کو ہیں؟ عالم دین وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ علم ہوتا ہے، علم کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ معلم کائنات بن کر کے ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھے سماج میں کتنا بدلاؤ آیا، پوری دنیا میں کس طرح سے لوگ ظالموں کا بول بالا تھا جس دور میں، اس دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں۔ جس وقت ماں باپ جو ہوتا تھا اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں جا کر گاڑ دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا،
उस मुआशरे में हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए और आज देखिए वही बेटी जो कल जिंदा दफन कर दी जाती थी आज उसके कदमों के नीचे जन्नत है जब वो माँ बन जाती है। कोलकाता के और खासतौर पर टोपिया के मुस्लिम भाइयों को क्या आप कहेंगे अपने ऐसे गार्जियन के अंदर अपने बच्चों को इस मदरसा में भेजने का क्या सिस्टम है, थोड़ा ये भी बता दें। मदरसे में भेजें जहाँ पे ऐसा सिस्टम है इंशाअल्लाह जो मंसूबे हैं इस फाउंडेशन के वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम पर हमारा फोकस है, हमारा फोकस ये है कि हर इल्म जो है कोई इल्म जो है ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं देता है, हर इल्म फ़ायदा देता है। हमारे कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, आलिम दीन की भी ज़रूरत है, हाफिज़ कुरान की भी ज़रूरत है। अगर हमारा डॉक्टर आलिम दीन होगा तो कितना फ़ायदा होगा आप ये सोचें। हमारा डॉक्टर अगर हाफिज़ कुरान होगा कितना फ़ायदा होगा, तरबियत भी होगी, कौम का फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आएगा। मदरसे में आप तक कितने बच्चे ये तालीम हासिल कर वो इंशाअल्लाह हज़रत बताएंगे अभी। मदरसे के हवाले से कुछ है, अब तक कितने बच्चे यहाँ पे फारिग हुए हैं और कितने बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, खासतौर से हिफ्ज़ वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए ये बताना चाहूँगा, अल्लाह का बेपनाह फज़ल और एहसान है कि आप लोगों ने अभी मुलाहज़ा किया कि हमने बहुत लंबा चौड़ा खर्च न करके जुमे के दिन ये प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि कौम के ऊपर बोझ न पड़े। आप समझ सकते हैं कि रात को प्रोग्राम करने से बहुत लंबा खर्च आता है। मुख्तसर वक्त में जो काम था मैंने कर लिया और अल्लाह का बेपनाह फज़ल है कि हर साल ही इस मदरसे से 2, 4, 5, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बन करके अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं। इमसाल अल्लाह का बेपनाह फज़ल है कि 10 बच्चों ने इमसाल कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। उन बच्चों का नाम इस तरह से है, हाफिज़ कैफ रज़ा इब्ने मोहम्मद हाशिम, ये कोलकाता ही के रहने वाले हैं। हाफिज़ जिशान रज़ा इब्ने मोहम्मद अजमल हुसैन, ये दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ अनस रज़ा इब्ने मोहम्मद मुजीब आलम, ये मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ एहतिशाम खान इब्ने मिराज खान, ये जमुई बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ शमशाद रज़ा इब्ने मोहम्मद मुख्तार मुजफ्फरपुर, ये बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ सनाउल्लाह सिद्दीकी इब्ने अमानुल्लाह सिद्दीकी, ये गया बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ वसीम खान इब्ने मरहूम आलमगीर आलम, ये गया बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ अवैस मुनव्वर इब्ने मोहम्मद मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। और हाफिज़ तफसीर रज़ा इब्ने मोहम्मद तौसी अहमद, ये कोलकाता के रहने वाले हैं। इस बच्चे के बारे में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा इस वक्त स्कूल में भी पढ़ रहा है और 11 क्लास में पढ़ रहा है और 11 में पढ़ते हुए इसने मदरसे में आकर के हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल कर लिया है। 11 बच्चा जो पढ़ रहा है वो मदरसे में कितना टाइम देके जो है हिफ्ज़ कंप्लीट किया? ये बच्चा स्कूल के अलावा वक्त जो बचता है वो वक्त वो मदरसे में देता है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तमाम गार्जियनों को गुजारिश करने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर मुकम्मल तौर से मदरसे में बच्चे रह करके हिफ्ज़ करते हैं तो अगर ज़हीन बच्चा है तो 2 साल 3 साल लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर उसके साथ स्कूल की भी पढ़ाई की जिम्मेदारी है तो 5 साल में बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा, 7 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा। पढ़ाई की बहुत लंबा वक्त होता है, ग्रेजुएशन करते करते कई साल लग जाते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी वो बच्चा हिफ्ज़ करना शुरू करे तो मैं समझता हूँ कि स्कूल भी पढ़ सकता है और 10 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान भी बन सकता है। एक और बच्चे का नाम छूट गया, वो हाफिज़ अय्यूब रज़ा इब्ने आलम अंसारी, ये भी गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। सबसे छोटे बच्चे का उम्र बताया था? सबसे कम उम्र के बच्चा जो हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान बना है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद 12 या 15 साल का है। इसके अलावा ये जो रहनुमा फाउंडेशन के घेरे मातहत ये मदरसा चल रहा है, तो आप लोग दाखिला का क्या इंतजाम रखते हैं और कैसे कराते हैं दाखिला? आप लोग को खुद ही पता होगा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर गरीब तर बच्चे होते हैं और ये अलमिया भी हमारे मुआशरे के लिए है। ये एक जहन बन गया है कि मदरसे में पढ़ाना है तो मतलब फ्री में पढ़ना चाहिए बच्चा। तो जो बच्चे कुछ दे सकते हैं तो 1000 रुपया 500 रुपया इस तरह से करके वो खुराकी देते हैं, वरना ज़्यादातर बच्चे जो है वो फ्री में ही पढ़ते हैं। जो लोग काम करते हैं उसी से सारा कुछ होता है। रहनुमा फाउंडेशन की बात जो आपने कही है, यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है सुभाष ग्राम, ये मल्लीपुर से पहले है और सोनारपुर के बाद है।
इन दोनों स्टेशनों के बीच में सुभाष ग्राम एक है। सुभाष ग्राम में अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं की बरकत से तकरीबन 4 बीघा ज़मीन हमने रजिस्ट्री करवा लिया है और 5 बीघा पे समझ लीजिए कि उसका नक्शा बन चुका है और ये अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह रहमान तामीरी काम होगा और ये इदारा खालिस बच्चियों के लिए है और इसमें तालीम का जो इंतज़ाम रहेगा वो इंशाअल्लाह रहमान इस तरह से रहेगा कि उसमें स्कूल का भी निसाब रहेगा और मदरसे का भी निसाब रहेगा। यानी एक बच्ची एक ही छत के नीचे अल्लाह ने चाहा तो वो ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट होगा और इंशाअल्लाह रहमान वो आलिमा बन करके भी निकलेगी। आलिमा की कौम मुस्लिम में क्या ज़रूरत है? देखिए, दुनियावी तालीम का जहाँ तक मामला है उससे आप हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत की तमीज़ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इल्म दीन आपके पास है तो उससे आप हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़, सही और गलत की तमीज़ उसके अंदर होगी आपसे। सर, टाउन के लिए क्या अपील करेंगे आवाम से? अगर कौम को ये समझ में आता है कि हमने अच्छा काम किया और हम कर रहे हैं कौम के लिए, तो मैं कौम से यही गुजारिश करूँगा कि हमारा ताउन करें ताकि जो बड़ा मनसूबा है, क्योंकि ये जो सुभाष ग्राम का जो हमारा मनसूबा है ये 2-4 लाख 10 लाख का मनसूबा नहीं है बल्कि 50 करोड़ का ये मनसूबा है, बड़ा मनसूबा है। इसलिए कौम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें ताकि जो मनसूबा है उससे ज़मीन पे हम उतार सकें। जो सुभाष ग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं ये क्या मतलब एक क्लास से लेके मतलब कितने तक क्या बात और डिटेल बताएं थोड़ा इस बारे में। अभी फ़िलहाल अल्लाह ने चाहा तो हम उसको 12 तक के कर रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। कब टाइम होता है? इस वक्त कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं और हिफ्ज़ कितने बच्चे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और ये मैं दारुल कुरान मदरसा रहमानिया रज़विया तोपसिया कोलकाता में मैं पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में हमारा 8 साल मुकम्मल हो गया है और इस 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे फारिग हुए हैं और उससे कब्ल ये मदरसा बहुत पहले से कायम शुदा है। लगभग 15 से 20 साल का अरसा गुजर गया मदरसा शुरू होने में। इसमें ज़ेर तालीम बच्चे हैं और हर साल 2-4 बच्चे फारिग होते ही हैं। यहाँ पे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है और क़िरात की पढ़ाई होती है और इस मदरसे में जो कैपेसिटी है वो हिफ्ज़ पढ़ाई की है और जिस तरह आमदनी के ज़राए हैं, क्योंकि लोगों के ताउन से मदरसा चलता है। मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे ऐसे बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। उन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ और पूरी यहाँ पे कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेहनत करते हैं, इंतज़ाम करते हैं और सब मिल करके चलाते हैं। तो 40 बच्चे का कैपेसिटी है यहाँ पे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, हिफ्ज़ की तालीम होती है। मुदर्रिस हैं सर आपके इस मदरसे में? जी हमारे यहाँ 2 मुदर्रिस हैं 40 बच्चे में पढ़ाने के लिए और 2 और मुदर्रिस से टोटल 4 मुदर्रिस हैं, जिसमें से आप खुद हाफिज़ हैं? जी मैं हाफिज़ कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने आलमियत की पढ़ाई की है। एक हाफिज़ दूसरे को हिफ्ज़ बनाने की तरतीब देता है। जी जी। तो उसके लिए क्या परेशानी आती है? बच्चों को किस तरह से संभालते हैं? परेशानियाँ ये होती है कि बच्चों का जो मामला है उसकी तरबियत और तालीम दोनों देनी पड़ती है। तो तरबियत और तालीम दोनों देने के लिए काफ़ी मेहनतें होती है। जो सुबह उठाना पड़ता है, नमाज होती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, उनके गार्डिंग करनी पड़ती है बाकायदा तौर पर और फिर क्लास होता है, उसका देख रेख करना, उसकी पढ़ाई और साल भर में उसके खाने पीने का इंतज़ाम। अगर तबीयत ख़राब हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाना, दिखाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी की बात है हम लोगों के लिए, अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में ये मैसर नहीं करता है। ये इल्मों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तमाम तालिब इल्मों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करे, क्योंकि तालीम तो हर कोई ले सकता है लेकिन हुस्न अखलाक हर कोई नहीं ले सकता है। तो जो कोई मदरसे में मुतअल्लिम मदरसा है तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और अपने उस्ताद के एहतराम करें, क्योंकि तालीम का जो पहला मंजिल है वो है हुस्न अखलाक, वो अदब है। अदब के बगैर तालीम बेकार है। इसलिए मैं तमाम तालिबे उलूम नबविय्या को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले हुस्न अखलाक पैदा करें और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी की गुजारें। तो यकीनन ये शेर ने कहा, किसी शायर ने कहा है कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो यकीनन ये चीज़
समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हिफ्ज़ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहनत और अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो यकीनन बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलें उसके लिए आसान हो जाया करती हैं। तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को क्या मशवरा दें? हाँ, तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और उसका साथ दें। वो जब जहाँ चाहें पढ़ने के लिए, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो दें, दुनियावी चीज़ों से उन्हें दूर रखें और उनका आप ज़रूर से ज़रूर साथ दें। जी, 10 बच्चों ने यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैं उन तालिब इल्म नबवियों को यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा रखा है, तो अपने इल्म, ज़ेवर इल्म से लोगों को आरास्ता व पैरस्ता करें और पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताएं, आप जो है आपके स्कूल में भी पढ़ते हैं और हिफ्ज़ भी कंप्लीट किए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे ये मतलब ये मुमकिन हुआ? ये मुमकिन सिर्फ मेरे उस्ताद के कोशिश और उनके मेहनत के ज़रिए से हुआ, वरना मैं यहाँ इस वक्त खड़ा नहीं रहता। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आप जो है स्कूल का टाइमिंग क्या है बताइए? स्कूल का टाइमिंग दरअसल अभी मैं तालतला हाई स्कूल में हूँ, तालतला हाई स्कूल में हूँ अभी। अच्छा, तो उसकी टाइमिंग 10:40 से 3:30 बजे तक है। 3:30 बजे जी। आप मदरसे में कब आते हैं? मगरिब बाद, मगरिब बाद। जी। और मगरिब से लेकर कितना देर तक रहते हैं? रात 11:30 बजे तक। 11:30 बजे। जी। आप कितना टाइम लगा हिफ्ज़ करने में? 3.5 साल तक, 3.5 दोनों को साथ में चलाने से, इसलिए इतना साथ टाइम लगा। यानी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? यानी ये आप साबित कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते करते भी जी, एब्सोल्युटली ये कर सकते आप हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से मेहनत करना होगा, क्या टाइमिंग रखना होगा? बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ द पावर ऑफ की ऑफ सक्सेस। कैसे मेंटेन करेंगे? वो अपने माइंडसेट को थोड़ा डाइवर्ट होने से बचाना पड़ेगा। मतलब आपको स्कूल में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना, तो बताया कैसे आपने पढ़ाई किया है, आपने कैसे तैयारी की? दरअसल ये ऐसे है कि बिना किसी प्रोफेशनल टीचर के अलावा नहीं हो सकता ये चीज़, तो उनका सपोर्ट के ज़रिए ही ये काम हो सकेगा, मुमकिन है। आपने कैसे पढ़ाई किया और उसको कैसे तो बताया ताकि और दूसरे बच्चों को जो है मैं दरअसल पहले क्लास 9 से मैंने हिफ्ज़ शुरू किया था। उसके बाद क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया मैंने माध्यमिक 2024 का, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 60% के अबव स्कोर किया और अभी मैं साइंस स्ट्रीम के साथ क्लास 11 प्रोसीड कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बंदा चाहे तो दोनों को एक साथ लेकर कर सकता है। आप हिफ्ज़ के लिए डेली कितना टाइम देते हैं? हिफ्ज़ के लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हाफ डे, 1 घंटा को बोलिए, कितना घंटा देते हैं? 12 घंटा के करीब। दोनों को मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हिफ्ज़ से पढ़ाई के लिए आप कितना टाइम देते थे? 12 घंटे के करीब देता था एक दिन क्योंकि में 12 घंटा? जी, दोनों को मैनेज करना पड़ रहा था। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप हिफ्ज़ के लिए आप एक दिन में कितना टाइम देते थे, कितना घंटा? लगातार याद करने के लिए अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स। जी। और अपना स्कूल के लिए? स्कूल के लिए फिर वही क्लासेस करता हूँ, कोचिंग क्लासेस है वगैरह, वो सबको मैनेज करना पड़ता है एक दिन में, तो थोड़ा नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता था। कब सोते थे, कब उठते थे आप? 11 बजे का टाइमिंग था और सुबह 4 बजे या 5 बजे के करीब उठना था। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, बस यही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ठीक है, शुक्रिया।